پیش خدمت ہے کہانی امبر ناگ ماریا واپسی کا سفر قسط نمبر 125 99 سیڑھیوں کا راز دوسرا حصہ۔ اب ہم ذرا ماریا اور ناگ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ماریا تو ایک بحری جہاز میں سوار دریائے سندھ سے نکل کر بحیرہ عرب میں سفر کرتی اس زمانے کے ملک انگلستان کی طرف آ رہی تھی، کیونکہ امبر نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ وہ ہندوستان سے یورپ کی طرف جائے گا تاکہ وہاں انگلستان کے ملک کی سیر کر سکے۔ دوسری طرف ناگ نے امبر کے ساتھ چشمے میں ڈبکی لگا کر جب پانی سے سر باہر نکالا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نہ تو درخت ہے، نہ چشمہ، اور نہ امبر ہے اور نہ ماریا وہاں پر ہے۔ وہ ایک بنجر سے علاقے میں ہے جہاں زمین کا رنگ سرخ ہے اور سرخ بھربھرے پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ ناگ نے اپنے آپ کو ایک سرخ بھربھرے پتھر والی چٹان کے سائے میں پایا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں؟ امبر کہاں ہے؟ ناگ کو فوراً خیال آیا کہ وہ تاریخ میں چھلانگ لگا کر پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ وہ اب کبھی پیچھے جانے لگتے تھے تو ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور 200 یا 300 سال پیچھے چلے جاتے اور اکثر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا واپسی کا سفر جاری تھا۔ جب ناگ نے امبر کو تلاش کرنا تھا، ماریا سے ملاقات کرنی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر دوبارہ 5000 سال واپسی کا سفر اختیار کریں، لیکن اب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے۔ اب خدا جانے کون کہاں پر تھا اور کن پراسرار اور بھیانک حادثوں میں سے گزرنے کے بعد ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو۔ ناگ چٹان کی اوٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا، سارے کا سارا علاقہ ویران ویران تھا۔ دور دور کہیں پر ایک آدھ درخت دکھائی دے رہا تھا۔ ناگ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا ملک ہے اور اس ملک کے کون سا شہر کا ویرانہ ہے۔ وہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ وقت دن کا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، آسمان کا رنگ صاف اور کھلا نیلا تھا، موسم سرد تھا، اور اس اعتبار سے ناگ نے محسوس کیا کہ وہ ہندوستان اور مصر و دمشق وغیرہ کے علاقے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقے عام طور پر گرم تھے۔ صحرا بھی نہیں تھا جس سے یہ سمجھا جاتا کہ وہ عرب کے علاقے میں ہے۔ زمین اگرچہ بھربھرے سرخ پتھر کی تھی مگر ریت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ناگ کا لباس وہی لمبا چوغا اور تنگ پونچے کی شلوار والا تھا۔ اس کی جیب میں ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں 3 اشرفیاں پڑی تھیں۔ وہ خدا کا نام لے کر چلا جا رہا تھا کہ کوئی شہر یا گاؤں آئے تو معلوم کرے کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور کس بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ناگ کو سانپ کا مہرہ یاد آ رہا تھا جسے منہ میں رکھ کر وہ اڑ کر سفر طے کر لیا کرتا تھا، اگرچہ اسے تھکان وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور وہ بغیر رکے کئی میل چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ غائب ہو کر اڑنے کے بجائے کیوں نہ وہ عقاب بن کر سفر طے کرے۔ یہ خیال اسے پسند آیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عقاب بن کر فضا میں پرواز کر گیا۔ وہ زمین سے تھوڑی بلندی پر درختوں کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے سفر جلدی طے ہو گیا۔ درخت آ گئے۔ ناگ نیچے اتر آیا۔ یہاں ایک کنواں بنا ہوا تھا جس پر ایک چرخی بھی لگی ہوئی تھی اور ایک عورت کنویں میں سے پانی کا ڈول نکال کر اپنی سراہی میں ڈال رہی تھی۔ ناگ درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک کچے مکانوں والا گاؤں تھا۔ دیواروں پر گیروے رنگ کی مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا اور مکانوں کی چھتیں سرخ اور ڈھلانی تھی۔ ناگ نے اپنی چونچ والی گردن نیچی کر کے پانی بھرتی عورت کو دیکھا۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا تھا، یعنی کالی گھیردار شلوار، لمبا کرتا اور سر پر سیاہ دوپٹہ۔ عورت کا رنگ صاف اور گورا گورا تھا۔ عورت نے سراہی کندھے پر رکھی اور اس پگڈنڈی پر چل پڑی جو گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ناگ درخت پر سے اڑ کر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ یہ 60-70 مکانوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی کچی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے اور ایک کتا دھوپ میں سو رہا تھا۔ کچھ سرخ گالوں والے بوڑھے مکانوں کی کھڑکیوں میں بیٹھے تھے۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ناگ گاؤں کے پیچھے جا کر زمین پر اتر آیا اور عقاب سے دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آتے ہی وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہی عورت جو کنویں پر پانی بھر رہی تھی اس کے قریب سے گزری تو ناگ نے اسے سلام کر دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ عورت نے وعلیکم السلام کہا اور جلدی سے ایک مکان کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک ناواقف مرد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج سے 450 سال پہلے کی مسلمان عورتیں بہت باحیا اور شرمیلی ہوا کرتی تھیں۔ عورت کو سلام کرتے ناگ کو ایک بوڑھے آدمی نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کھڑکی میں بیٹھے بیٹھے ناگ کو آواز دی۔ ناگ فوراً سمجھ گیا کہ وہ ترکی زبان میں بات کر رہا ہے۔ ناگ اس بوڑھے کی کھڑکی کے نیچے آ گیا۔ بوڑھے نے پوچھا، برخوردار تم کون ہو؟ لباس سے تم مسلمان افغان لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ناگ نے ترکی زبان میں کہا، میں مصر کا رہنے والا ہوں اور مسلمان ہوں، ایران میں کافی دیر رہا ہوں، میں دنیا کی سیر کرنے گھر سے نکلا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مگر ترکی زبان تم اتنی اچھی کیسے بول لیتے ہو؟ کیا تم پہلے کبھی ترکی آئے ہو؟ ناگ سمجھ گیا کہ یہ ترکی کے ملک کا کوئی گاؤں ہے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، میرے والد صاحب ترکی میں کئی سال رہ چکے ہیں، ترکی زبان میں نے ان سے سیکھی تھی۔ بوڑھے نے کہا، مکان کی جوڑی میں تخت بچھا ہے، وہاں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ناگ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عورت نے آ کر ناگ کے آگے ایک رکابی اور گلاس رکھ دیا۔ گلاس میں دودھ تھا اور رکابی میں انگور تھے۔ پھر بوڑھا بھی آ گیا، اس کے بال سفید اور گال سرخ تھے۔ بیٹا، یہ انگور ہمارے اپنے باغ کے ہیں اور دودھ گھر کی بھینس کا ہے، کھاؤ اور پیو۔ ناگ نے دودھ پیا، انگور کھائے اور بوڑھے سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اسے پتا چل گیا کہ وہ ترکی کے ملک میں ہے اور ترکی پر خلیفہ دوم کی حکومت ہے۔
नाग ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कोई 150 साल पहले पीछे आ गया है। इसका मतलब है कि अंबर भी 150 साल तारीख में पीछे चला गया होगा और मारिया भी पीछे की तरफ जा चुकी होगी। वो अलग अलग मुल्कों में कहीं जा निकले होंगे और अब उनकी मुलाकात खुदा जाने कब, कहाँ और किन हालात में हो। नाग सोचने लगा कि बेहतर है वो इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में जाए जो दारुल खलाफा हो सकता है वो उसकी मुलाकात मारिया और अंबर से हो जाए, क्योंकि उससे एक बार ऐसा हुआ था कि वो जब तारीख में पीछे की तरफ गए तो उनकी मुलाकातें इत्तेफाक से किसी बड़े शहर में हुई थी। नाग ने बूढ़े से पूछा कि तुर्की का दारुल खलाफा वहाँ से कितनी दूर है। बूढ़े ने कहा, क्या तुम दारुल खलाफा से नहीं आ रहे? नाग ने कहा, नहीं, मैं दरअसल शाम की तरफ से तुर्की की सरहद अबूर की थी, अभी मुझे दारुल खलाफे में जाना है। बूढ़े ने कहा, दारुल खलाफा इस्तांबुल यहाँ से 500 कोस के फासले पर जनूब की तरफ है। अगले गांव से तुम्हें सवारी मिल जाएगी जो 1 दिन और 1 रात के सफ़र के बाद तुम्हें अजमेर पहुँचाएगी। वहाँ से फिर तुम्हें नई सवारी लेना होगी। इस तरह सफ़र करते तुम 7-8 दिनों में इस्तांबुल पहुँच जाओगे। नाग ने उस नेक दिल बूढ़े को ये बताने की ज़रूरत महसूस ना की कि वो घोड़े पर बैठकर नहीं बल्कि हवा में उड़कर इस्तांबुल जाएगा और बड़ी जल्दी पहुँच जाएगा। नाग ने बूढ़े से इजाज़त ली और उस सड़क पर आ गया जो अगले गांव की तरफ जाती थी। ये वीरान और कच्ची सड़क थी। 2 घुड़सवार सामने से घोड़े दौड़ाते आए और नाग के करीब से गर्द उड़ाते गुजर गए। जब दोनों घुड़सवार दूर चले गए तो नाग ने गहरा सांस लेकर अकाब की शक्ल इख्तियार की और हवा में उड़ना शुरू कर दिया। वो मगरिब की तरफ उस तरफ से उड़ रहा था कि सीधा इस्तांबुल पहुंच जाए। नाग को अकाब की शक्ल में हवा में उड़ता छोड़कर हम एक बार फिर मारिया की तरफ जाते हैं कि जब वक्त ने एकदम से पीछे की जानिब 150 साल की छलांग लगाई तो मारिया पर क्या गुजरी। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मारिया दरियाए सिंध से निकलकर एक बादवानी जहाज़ में मुल्क इंग्लिस्तान की तरफ सफ़र कर रही थी, क्योंकि अंबर ने हिंदुस्तान में एक बार कहा था कि मुल्क इंग्लिस्तान की तरफ जाना चाहता है। जब वक्त ने उल्टी छलांग लगाई तो उससे 1 मिनट पहले मारिया अपने बादवानी जहाज़ के अर्शे पर जंगले के साथ लगकर खड़ी थी और एक बच्चे को अपनी माँ के साथ बैठे बातें करते देख रही थी। बच्चा 3-4 साल का था और बड़ा प्यारा था। अचानक जहाज़ को धचका लगा। उस धचके को सिवाय मारिया के और किसी ने महसूस नहीं किया था। मारिया जंगले से छूटकर दूर लकड़ी के फर्श पर जा गिरी। वो बड़ी हैरान हुई कि और किसी मुसाफिर को ये झटका नहीं लगा था। उसका माथा ठनका, कहीं वक्त ने पीछे की तरफ छलांग तो नहीं लगा दी। उसने सोचा, क्योंकि उससे पहले भी उसे इस किस्म का तजुर्बा हो चुका था। वो जल्दी से फर्श पर से उठी। उसने जहाज़ के बादवानों, मुसाफिरों और जहाज़ के मलाहों को देखा। हर शय अपनी जगह पर रुक गई थी। हर कोई अपनी जगह पर पत्थर बन गया। फिर मारिया ने देखा कि हर शय धुंधली हो रही है। ये वो जहाज़ था जिसे अभी सफ़र पर रवाना होना था। ये वो मुसाफिर थे जिन्हें अभी पैदा होना था, क्योंकि मारिया 150 साल पीछे जा रही थी। हर शय धुंधली होते होते गायब होने लगी। पहले मुसाफिर गायब हुए, फिर जहाज़ के बादबान बादलों में गुम हो गए, फिर जहाज़ गायब हो गया। मारिया ने आंखें बंद कर लीं। वो समंदर के ऊपर अकेली रह गई। उसने अपने पाँव के साथ समंदर की लहरें टकराती महसूस की। फिर उसे अपने पैर ठंडी ठंडी गीली रेत पर लगते हुए महसूस हुए। उसने आंखें खोल दी। क्या देखती है कि समंदर के किनारे रेत पर खड़ी है। समंदर दूर तक फैला हुआ है। लहरें दूर दूर से आ रही हैं। रेत पर उसके पाँव के करीब आकर उसे छूकर वापस चली जाती हैं। उसे ठंडक का एहसास हुआ। यहाँ सर्दी थी। उसके एक जानिब ऊंची चट्टानें थीं। दरख्त कहीं कहीं उन चट्टानों पर उगे हुए थे। आसमान भूरे सर्द बादलों में छुपा हुआ था। मारिया को सर्दी लगने लगी। कभी कभी उसे शदीद सर्दी लगने लगती थी। फिर वो गर्म कपड़ा लेती या आग तापती तो सर्दी दूर हो जाती। उसके जिस्म पर शाबुद्दीन गौरी के ज़माने का लंबा कुर्ता शलवार थी। पाँव में भी कुछ नहीं था। मारिया चट्टानों के दरमियान बने हुए रास्ते से होकर समंदर के दूसरी तरफ आ गई। यहाँ उसे सफ़ेदे के दरख्तों की कतार नजर आई जिसके पत्ते झड़ चुके थे। उस कतार के आगे एक सड़क पर दूर घोड़ा बग्गी उड़ी जा रही थी। कोचवान ने ऊंचा टोप और काला गर्म ओवरकोट पहन रखा था। वो बग्गी के ऊपर वाली सीट पर बैठा था और घोड़ों पर चाबुक बरसा रहा था। मारिया सफ़ेदे के दरख्तों के नीचे से गुजरकर सड़क पर आकर खड़ी हो गई। ये सड़क छोटी छोटी ईंटें और गोल पत्थर जोड़कर बनाई गई थी। उसके किनारे पर कहीं कहीं दरख्त नजर आ रहे थे। सड़क आगे जाकर चढ़ाई पर जाकर दूसरी तरफ उतर गई थी। मारिया ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। ठंडी हवा चल रही थी जो हड्डियों में बर्फ बनकर उतर रही थी। मारिया को इतनी सर्दी पहले कभी नहीं लगी थी। शाम होने वाली थी। खुदा जाने ये कौन सा मुल्क था। वैसे मारिया को अंदाज़ा हो गया था कि यूरोप का कोई मुल्क है। सर्दी और आसमानों पर ठंडे बादलों का फीका रंग बता रहा था कि यह किसी यूरोप के मुल्क का साहिली इलाका है। मारिया सड़क की चढ़ाई पर पहुंचकर दूसरी तरफ आई तो देखा कि सामने एक पुल है जिसके नीचे गहरी घाटी है। उस घाटी में कीचड़ था और लंबी लंबी घास उगी थी। पुल लकड़ी का बना हुआ था। मारिया पुल पर से गुजर गई। यहाँ सफ़ेदे और क्रिसमस के दरख्त बहुत उगे हुए थे। सड़क आगे जाकर घूम गई। कोई घोड़ा गाड़ी या बग्गी भी नहीं आई थी। उस ज़माने में एक शहर से दूसरे शहर तक घोड़ा गाड़ियाँ और बग्गियाँ चला करती थीं और मुसाफिर उनमें सफ़र किया करते थे। हवा तेज़ हो गई। दरख्त के नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे। साइप्रस के दरख्तों के नोकीले पत्ते अभी वहाँ गिरे थे। हवा में वो इस तरह झूम रहे थे जैसे औरतें हवा में बाल सुखा रही हों। मारिया पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो उसने दरख्तों के नीचे एक स्याह कोट और स्याह हैट वाले अजीब से आदमी को देखा।
वो एक दरख्त के नीचे बड़े से पत्थर पर बैठा था और बड़े गौर से सड़क की तरफ देख रहा था। ऐसा लगता था कि उसे सवारी का इंतजार है। मारिया ने सोचा जरूर उस जगह पर मुसाफिर गाड़ी आकर खड़ी होती होगी। उसे भी उस जगह रुककर मुसाफिर गाड़ी का इंतजार करना चाहिए ताकि वो गरम गरम मुसाफिर गाड़ी में बैठकर सर्दी का मुकाबला कर सके और फिर शहर पहुंचकर कम से कम किसी जगह से गर्म कोट ही लेकर पहन ले। मारिया सड़क पर एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। पुल के दूसरी जानिब ऊंचाई तक सड़क सुनसान थी। स्याह पोश पुरस्रार मुसाफिर भी बेचैनी से पहलू बदल बदल कर मुसाफिर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी स्याह डाकुओं जैसी मूछें मारिया को दूर से नजर आ रही थी। खुदा जाने क्यों मारिया को ये आदमी पुरस्रार लगा और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ये आदमी यहाँ अच्छी नीयत से नहीं बैठा। लेकिन मारिया ने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। वो ख्वामख्वाह किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। उसे तो उस वक्त सिर्फ उस शय की ज़रूरत थी कि मुसाफिर गाड़ी आए और वो उसमें बैठकर शहर जाए और किसी जगह से गर्म कोट हासिल करे और फिर ये मालूम करे कि कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। शाम का अंधेरा दरख्तों में उतरने लगा। सर्दी भी ज़्यादा हो गई थी। हवा इस तरह चल रही थी, आसमान पर बादलों की वजह से शाम होती अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। इतने में दूर से पथरीली सड़क पर घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। स्याहपोश आदमी चौकन्ना होकर दरख्त के नीचे से उठकर पुल की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। उसके हाथ में चांदी की मोठ वाली काली छड़ी थी और हाथों पर भी उसने स्याह दस्ताने चढ़ा रखे थे। वो पुल पर मारिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मारिया को ना तो वो महसूस कर सकता था और ना देख सकता था। मारिया ने उस स्याहपोश आदमी को गौर से देखा। उधेड़ उम्र का पक्के रंग वाला आदमी था। जिस्म वर्जिशी था, नाक लंबी और आगे से ऊपर को उठी हुई थी, मूछें डाकुओं जैसी थी और आंखों में एक अजीबो गरीब किस्म की गुलाबी गुलाबी चमक थी। वो टिकटिकी बांधे सड़क की चढ़ाई की तरफ देख रहा था जहां से अब एक मुसाफिर गाड़ी को दो घोड़े उड़ाई लिए चले आ रहे थे। उतराई की वजह से कोचवान ने बागें दोनों हाथों से पीछे को खींच रखी थी। मारिया ने महसूस किया कि पुरस्रार स्याहपोश ने 1 मिनट में सिर्फ एक आध बार ही आंखें झपकी थी। घोड़ा गाड़ी जब लकड़ी के पुल के करीब आई तो स्याहपोश ने छड़ी ऊपर उठाकर उसे रुकने को कहा। गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। स्याहपोश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मारिया भी उसके पीछे गाड़ी में दाखिल हो गई। घोड़ा गाड़ी के अंदर आमने सामने 6 मुसाफिरों के बैठने की जगह थी। उस वक्त गाड़ी में सिर्फ 4 मुसाफिर बैठे थे। 2 बूढ़े मर्द जो कंबल ओढ़े ऊँग रहे थे, एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ एक बिलोर जैसी नीली आंखों वाली गोरी लड़की बैठी थी। उसने पुराने फैशन का चेकदार गर्म कोट और गर्म गाउन पहन रखा था। सर पर उसी कपड़े की गोल टोपी थी। टोपी में से उसके भूरे बाल बाहर को निकलकर उसके शानों पर पड़े थे। मारिया को यह लड़की बड़ी प्यारी सी लगी। उसका दिल चाहा कि उसे अपनी सहेली बना ले, मगर मजबूर थी। वो किसी को इतनी आसानी से अपनी सहेली नहीं बना सकती थी। फिर भी उसने अपना थोड़ा सा शौक पूरा कर लिया और लड़की के साथ बैठ गई। मारिया को लड़की के जिस्म की गर्मी महसूस हो रही थी, मगर वो लड़की मारिया के जिस्म को महसूस नहीं कर सकती थी। लड़की के कपड़ों और बालों से इतर की हल्की हल्की बड़ी खुशगवार खुशबू आ रही थी। घोड़ा गाड़ी आगे रवाना हो गई। मारिया ने महसूस किया कि पुरस्रार स्याहपोश नीली आंखों वाली लड़की को बड़े गौर से देख रहा था। बूढ़ी औरत ने खालिस अंग्रेज औरतों के लहजे में कहा, मौसम बड़ा खराब है, शायद बारिश हो। मारिया समझ गई कि मंगलिस्तान के किसी साहिली इलाके पर पहुंच चुकी है। पुरस्रार स्याहपोश नीली आंखों वाली लड़की को घूरने में इतना मसरूफ था कि उसने कोई जवाब न दिया। अब लड़की ने भी महसूस किया कि वो आदमी उसे घूर रहा है। उसने मुंह खिड़की की तरफ कर लिया और शीशे में से बाहर देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब दूसरी बार स्याहपोश से कहा कि मौसम के बारे में उसका क्या ख्याल है तो वो चौंका। हाँ मैडम, हाँ, आज मौसम खराब है। वो मुस्कुरा कर बात कर रहा था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि वो कहाँ से आ रही है। बूढ़ी औरत पहले ही खामोश बैठे बैठे तंग आ चुकी थी। उसने धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दिया। मैं बोर्स्टल से आ रही हूँ, किंग्स बरी से लंदन जाऊंगी। वहाँ मेरा बड़ा लड़का कारोबार करता है। जहाज़ों पर उसका माल जमैका और अफ्रीका के मुल्कों को जाता है। और औरत बोले जा रही थी। स्याहपोश ने उसकी बात काट कर लड़की से मुस्कुरा कर पूछा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आज तो मौसम सफ़र के लिए बहुत बुरा है। नीली आंखों वाली लड़की ने बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लंदन। स्याहपोश लड़की की तरफ घूरते हुए बोला, मैं भी लंदन जा रहा हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया। मारिया ये सब बातें खामोशी से सुन रही थी। वो सोच रही थी कि वो एक अरसे के बाद लंदन जा रही है। खुदा करे कि वहाँ नाग और अंबर से उसकी मुलाकात हो जाए। अभी तक उसने स्याहपोश मुसाफिर को कोई अहमियत ना दी थी। उसका ख्याल था कि अंग्रेज़ इस उम्र को पहुँच जाता है तो वो ऐसा ही हो जाया करता है और ख्वामख्वाह लड़कियों को घूरना शुरू कर देता है। घोड़ा गाड़ी पथरीली सड़क पर हिचकोले खाती अपनी मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। मारिया ने देखा कि स्याहपोश आदमी ने अपनी वास्किट की जेब में 2 उंगलियां डालकर एक नीले रंग की बड़ी खूबसूरत शीशी बाहर निकाली। उसका ढकना खोलकर अपनी नाक के साथ लगाया। फिर बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाकर कहा, प्यारी आंटी जरा इस इत्र को सूंघ कर तो देखो, ये हमारा खानदानी इत्र है। 200 बरस से हमारे खानदान में चला आ रहा है। प्लीज जरा सूंघ कर देखो। बूढ़ी औरत तो पहले ही उसके साथ बातें करने के मौके तलाश कर रही थी। झट से शीशी लेकर नाक के साथ लगाई और सूंघ कर कहा, वंडरफुल, ऐसा इत्र मैंने पहले कभी नहीं देखा।
और स्याह पोश ने नीली आंखों वाली लड़की के मुंह के पास इत्र की शीशी ले जाकर कहा, प्लीज मैडम, क्या आप इसे सूंघ कर मेरी इज्जत अफजाई नहीं करेंगी? नीली आंखों वाली लड़की ने दिल पर जबर करके इत्र की शीशी को नाक के साथ लगाकर एक हल्का सा सांस ऊपर को खींचा और शीशी परे कर दी। क्या ख्याल है मैडम? स्याहपोश ने पूछा। नीली आंखों वाली लड़की ने आहिस्ता से कहा, अच्छी खुशबू है। अब स्याहपोश ने बाकी दो बूढ़ों की तरफ देखा जो ऊँग रहे थे। उसने शीशी बारी बारी उनकी नाक के साथ लगाकर कहा, बड़े मियाँ तुम भी जरा इत्र के मजे लो। बूढ़ों के नथनों में सांस के साथ अपने अपने इत्र की खुशबू घुस गई। स्याहपोश ने इत्र की शीशी का मुंह बंद करके उसे बास्केट की जेब में रख लिया और गौर से बूढ़ी औरत और फिर नीली आंखों वाली लड़की की तरफ देखने लगा और फिर बोला, मेरा ख्याल है हम आधे घंटे तक किंग्सबरी पहुंच जाएंगे। बूढ़ी औरत को नींद आने लगी। अजीब बात यह थी कि अभी 1 मिनट पहले वो बड़ी चाको चबंद थी और चहक चहक कर स्याहपोश आदमी से बातें कर रही थी, मगर अब उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और गहरे गहरे सांस ले रही थी। स्याहपोश ने नीली आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर कहा, मैडम आप लंदन में कहाँ रहती हैं? मारिया ने देखा कि नीली आंखों वाली लड़की भी ऊँगने लगी थी। बड़ी अजीब बात थी, अभी अभी वो भी जाग रही थी और उस पर नींद का जरा सा भी असर नहीं था। पुरस्कार स्याहपोश ने आहिस्ता से पहली बूढ़ी औरत को हिलाया, वो बेहोश हो चुकी थी। फिर नीली आंखों वाली लड़की को कंधे से पकड़कर हिलाया, उसका सर पीछे को ढलक गया, वो भी बेहोश हो चुकी थी। दो बूढ़ों को बेहोश होने में जरा सी देर भी नहीं लगी, वो तो पहले ही ऊँग रहे थे। पुरस्कार स्याहपोश ने अपनी छड़ी से घोड़ा गाड़ी की छत पर ठक ठक की। कोचवान ने हू की लंबी आवाज निकालते हुए गाड़ी रोक ली। स्याहपोश ने खिड़की में से सर बाहर निकालकर कोचवान से कहा, हेनरी घर की तरफ चलो। कोचवान हेनरी ने गाड़ी पीछे मोड़ ली। मारिया ये सारा खतरनाक खेल खामोशी से देख रही थी। पुरस्कार स्याहपोश पर उसे पहले ही शुबा था कि वो कोई गैर मामूली हरकत करने वाला है। उसने बेहोश करने वाली तेज और खुशबूदार दवाई सुंघाकर सबको बेहोश कर दिया था। स्याहपोश बड़े सुकून से बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। वो अपने आप को गाड़ी में तन्हा समझ रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि एक लड़की उसके सामने बैठी उसकी सारी हरकतें देख रही है। घोड़ा गाड़ी अब खेतों में से गुजर रही थी। मारिया ये देखना चाहती थी कि ये पुरस्कार स्याहपोश करना क्या चाहता है, उसने इन लोगों को किस लिए बेहोश किया है। जाहिर है कोचवान उस स्याहपोश के साथ मिला हुआ था। गाड़ी पक्के रास्ते वाले एक गेट के अंदर दाखिल होकर एक तरफ को घूमकर खड़ी हो गई। स्याहपोश दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मारिया भी बाहर आ गई। वो एक पुरानी तर्ज का 2 मंजिला शिकस्ता सा मकान था, जिसके तंग और ऊंचे दरवाजे के बाहर तेल का लैंप सर्दी और धुंध में सिर्फ अपने इर्द गिर्द रोशनी फैला रहा था। स्याहपोश ने जेब से बटुआ निकालकर सोने के 4 पाउंड कोचवान की तरफ उछाल दिए। कोचवान ने खुश होकर पाउंड अपनी थैली में रख लिए और हैट उठाकर शुक्रिया अदा किया। स्याहपोश ने कहा, आज बड़ा अच्छा शिकार लाए हो तुम हेनरी। पिछले हफ्ते जो लड़की लाए थे उसका मगज बहुत छोटा था। कोचवान ने कहा, सर अगले हफ्ते इससे अच्छा माल भी लाऊंगा, मगर 8 पाउंड लूंगा। स्याहपोश ने कहा, मुझे मंजूर है। शब बखैर। शब बखैर सर। कोचवान ने घोड़ों को हल्की सी चाबक मारी और गाड़ी को मकान के हाथे से निकालकर रात के सर्द अंधेरे में गुम हो गया। इस दौरान में स्याहपोश नीली आंखों वाली बेहोश लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकालकर अपने कंधे पर डाल चुका था। वो मकान के तंग दरवाजे में से गुजरकर अंदर चला गया। मारिया उसके पीछे पीछे थी। मकान का अंदर का हिस्सा बाहर की तरह खामोश और आसेवी था, कोई नौकर नहीं था। स्याहपोश बेहोश लड़की को उठाए सीढ़ियां उतरकर मकान के तहखाने में आ गया। उस तहखाने की दीवारों का रंग सलेटी था और गुप अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कोने में एक बड़ी मोमबत्ती जल रही थी, जिसने अंधेरे को और ज्यादा भयानक बना दिया था। स्याहपोश लड़की को लेकर उस कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ एक अस्पतालों वाला स्ट्रेचर पड़ा था। स्ट्रेचर के पास एक ऊंचा स्टूल रखा था। तपाई पर एक तेल का लैंप पड़ा था। स्याहपोश ने बेहोश लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाकर चमड़े के तस्मे उसके सीने, टांगों और बाजुओं के गिर्द कसकर बांध दिए। इस काम से फारिग होकर उसने जेब से पत्थर निकालकर उसे रगड़ा और लैंप रोशन करके उसकी बत्ती ऊंची कर दी। कमरे में रोशनी हो गई, मगर ये रोशनी बड़ी नाकाफी थी और काली दीवारें उसे अपने अंदर निगल रही थी। स्याहपोश ने अपने सफेद दस्ताने उतारकर जेब में डाले, लड़की को झुककर गौर से देखा और मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ मारकर बोला, मेरा ताज़ा शिकार, हसीन शिकार, हेलन और उसके बच्चे इसकी दावत उड़ाएंगे। कमरे से बाहर निकलकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया। दूसरे तहखाने में आकर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। सीढ़ियां चढ़कर मकान की पहली मंजिल के कमरे में आकर उसने अपने कपड़े बदले। काली गर्म पतलून, काला लिबादा, स्याह ओढ़ा और अलमारी के निचले तहखाने से एक चीनी का ढका हुआ प्याला और चांदी का चम्मच लेकर दूसरी तरफ निकल गया। मारिया उसके पीछे पीछे थी। उसका ख्याल था कि यह एक वहशी किस्म का पागल आदमी है और इसने खूनखार किस्म के कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्हें ये इंसानों का गोश्त खिलाता है, क्योंकि उस जमाने के यूरोप के बड़े बड़े जागीरदार और नवाब ऐसे कुत्ते पाला करते थे। मगर वो इंसानी गोश्त उन्हें नहीं खिलाते थे, ये तो कोई पागल इंसान था। स्याहपोश मकान की पिछली सीढ़ियां उतरकर एक लंबे से कमरे में आ गया। यहाँ एक चिड़िया घर की तरह का एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था। इस पिंजरे के 3 तरफ पत्थर की दीवार खड़ी थी और एक जानिब लोहे की जाली का दरवाजा था। स्याहपोश ने चाबी लगाकर जालीदार दरवाजा खोल दिया। अंदर एक संदूक पड़ा था।
संदूक को खोलकर ढकना ऊपर उठाया तो मारिया को किसी अजदा की जबरदस्त फुनकार सुनाई दी। स्याह पोश ने सफेद रुमाल निकालकर संदूक के ऊपर लहराकर कहा, प्यारी हेलन, ये मैं हूं, तुम्हारा दोस्त। आज मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा लजीज शिकार पकड़ा है। लो, ये पिछले शिकार का मगज खाकर खत्म कर दो। कल से तुम्हें नए शिकार का मगज खिलाऊंगा। आओ आओ बाहर, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी ले आओ। मारिया ने देखा कि संदूक में से सब्ज और स्याह रंग का एक बहुत बड़ा अजदा, जिसकी मोटाई हाथी की सूंड से भी 2 गुना बड़ी थी, बाहर निकलने लगा। उसके साथ 10-12 उसी रंग के बड़े बड़े सांप भी बाहर निकलना शुरू हो गए। स्याह पोश उनके दरमियान बैठ गया और प्याली में से उन्हें मगज चम्मच से निकाल कर उन्हें खिलाने लगा। मारिया कांप उठी। ये खूनी दरिंदों से भी बढ़कर इंसानी दरिंदा था, जो खूबसूरत नौजवान लड़कियों को कोचवान हेनरी की मदद से अगवा करके बेहोश करके यहाँ लाता और फिर उनका मगज निकालकर अपनी अजदा नागिन हेलन और उसके बच्चों को खिलाता था। न जाने ये अब तक कितनी मासूम लड़कियों का खून कर चुका था। अजदा अपना गोल मुंह खोलकर बड़े मजे से खूबसूरत लड़की का मगज खा रहा था। स्याहपोश बारी बारी सब सांपों के मुंह में चम्मच से मगज डाल डाल कर उन्हें खिला रहा था। सांप उसके सामने फन उठाए मुंह खोले खड़े थे और इंसान का मगज खाकर झूम रहे थे। मारिया ने महसूस किया कि अजदा ने एक बार अपना भारी सर ऊपर उठाकर छत की तरफ मुंह करके 2-3 बार जुबान लहराई, फिर जिधर मारिया खड़ी थी उस तरफ मुंह करके जुबान लहराई और हल्की सी फुनकार मारी थी। मारिया के जिस्म में नाक के साथ हजारों साल रहने की वजह से उसकी बू आने लगी थी, लेकिन नाक से जुदा होने के बाद उस बू में कमी आ जाती थी। फिर भी बड़े अजदा उस बू को भी महसूस कर लेते थे। चुनाचे उस आदमखोर अजदा ने भी नाक की खास बू को महसूस कर लिया था, जिसकी बड़ी मध्यम और हल्की हल्की लहरें मारिया के जिस्म से उठ रही थी। मारिया ने अजदा से बात करने की कोशिश की, जिस तरह अंबर और नाक किया करते थे। उसने अजदा की तरफ देखते हुए एक जुमला लहरों की शक्ल में उसकी तरफ फेंका कि तुम इस स्याहपोश का मगज क्यों नहीं खाते। मगर उस अजदा पर इंसानी गोश्त की खा खाकर चर्बी की एक मोटी तह चढ़ गई थी, जिसने मारिया के दिमाग से निकलकर उसके जिस्म से टकराने वाली लहरों को बिल्कुल महसूस न किया। स्याहपोश जब सांपों को प्याली वाला सारा मगज खिला चुका तो सांप एक एक करके बड़े अजदा के सामने संदूक में चले गए। स्याहपोश ने संदूक बंद कर दिया, जंगले से निकलकर बाहर ताला लगाया और वापस अपने कमरे में आ गया। आतिशदान में आग जल रही थी, यहाँ उसने हाथ धोए, एक किताब लेकर कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की पर भारी पर्दा गिरा हुआ था, लैंप जल रहा था। स्याहपोश ने दीवार के साथ लटकी हुई रस्सी को खींचा। ये नौकर को बुलाने की घंटी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर एक दुबली पतली सी उधेड़ उम्र की औरत अंदर आ गई। उसने बड़े अदब से पूछा, यस मास्टर। स्याहपोश ने कहा, मेरा दूध ले आओ। नौकरानी चली गई। स्याहपोश किताब पढ़ता रहा। नौकरानी दूध का गिलास उसके पास रखकर चली गई। स्याहपोश दूध का एक एक घूंट करके पीने लगा। फिर उसने किताब बंद करके शेल्फ में वापस रखी। मेज का दराज खोलकर उसमें से चमड़े का एक ब्रीफकेस निकालकर खोला। मारिया ने आगे झुककर देखा, उसमें डॉक्टरों के ऑपरेशन करने के औजार पड़े थे। गोश्त काटने वाली छुरियां, चाकू, हड्डी काटने वाली तेज आरियां। गोया ये खबीस शैतान उस नीली आंखों वाली लड़की की खोपड़ी काटकर मगज निकालने की तैयारियां कर रहा था। ऑपरेशन के आलात वाला ब्रीफकेस बंद करके स्याहपोश ने एक तरफ रख दिया। वो कुर्सी पर से उठकर बेडरूम के पिछले कमरे की सीढ़ियां उतरकर एक और तहखाने में आ गया। यहाँ मारिया को बड़ी जबरदस्त बू महसूस हुई। उसने रुमाल नाक पर रख दिया। कमबख्त स्याहपोश को जरा भी बू का एहसास नहीं हो रहा था। तहखाने में अंधेरा था। स्याहपोश ने मोमबत्ती रोशन की तो मारिया के जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। यहाँ दीवार के साथ साथ कई इंसानी पिंजर लटके हुए थे। इन सब की खोपड़ियों के आधे ऊपर वाले प्याले गायब थे। ये उन मासूम लड़कियों के ढांचे थे जिनके दिमाग इस खबीस शैतान ने अपने सांपों को खिला दिए थे। मारिया का जी चाह कि वो इस शैतान का उसी वक्त गला घोंट डाले। स्याहपोश ने एक अलमारी में से दवाई की बोतल निकालकर जेब में रखी और मोमबत्ती बुझाकर बाहर आ गया। अपने कमरे में आकर उसने ऑपरेशन के औजारों को सफ़ेद कपड़े से चमकाना शुरू कर दिया, गोया वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। मारिया ने उसे उसी जगह छोड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर उस तहखाने की तरफ आ गई, जहाँ नीली आंखों वाली लड़की स्ट्रेचर पर बंधी पड़ी थी। दरवाजे में से गुजरने के बाद उसे ताला खोलने या दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने आप को आवाज़ की लहर की तरह लोहे के बंद दरवाजे में से गुजर कर निकल सकती थी। वो छोटे से ऑपरेशन रूम में आ गई। नीली आंखों वाली लड़की स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी, मगर अब उसे कुछ कुछ होश आ रहा था। वो किसी वक्त आहिस्ता से होंठ खोलकर मध्यम सी आवाज़ निकालकर किसी को आवाज़ देने की कोशिश करती थी। मारिया उसके करीब आकर खड़ी हो गई। स्याहपोश ने लड़की की टोपी उतारकर तपाई पर रखी हुई थी। लड़की के भूरे बाल स्ट्रेचर से नीचे लटके हुए थे। मारिया ने कान लगाकर सुना, लड़की शायद अपनी माँ को बुला रही थी, मामा मामा। मारिया को उस भोली वाली लड़की पर बेहद तरस आया। अगर इत्तेफाक से मारिया उस गाड़ी में सवार ना होती तो ये लड़की जिंदा नहीं बच सकती थी। मारिया लड़की के जिस्म के साथ बंधे हुए चमड़े के तस्मे खोलने लगी। अभी उसने बाजुओं के तस्मे खोले ही थे कि दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। मारिया रुक गई। दरवाज़ा खुला और स्याहपोश की दुबली पतली उधेड़ उम्र की नौकरानी पानी से भरा हुआ जग और तामचीनी का ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई।
یہ چیزیں اس نے اسٹریچر کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگے میز پر رکھ دی اور واپس جانے لگی تو اس کی نظر لڑکی کے کھلے ہوئے بازو کے تسمے پر پڑ گئی۔ وہ جلدی سے اسٹریچر کے پاس آئی اور تعجب سے دیکھنے لگی کہ تسمے کس نے کھول ڈالے ہیں۔ لڑکی کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماما ماما۔ دبلی عورت بولی، ماما کو بھول جاؤ، تم چند گھڑیوں کی مہمان ہو۔ عورت نے تیزی سے اس کے کھلے تسمے پھر سے کس کر باندھ دیے، ساتھ ساتھ وہ ایک نیم پاگل عورت کی طرح بولے بھی جا رہی تھی، یہ تسمے کس بھوت نے آ کر کھول دیے تھے؟ تم تو بے ہوش تھی، تم نہیں کھول سکتی، بس اور تھوڑی دیر سانس لے لے پھر تیرا مغز۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے جو اپنے آپ کو اسٹریچر پر بندھے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بولی، میں کہاں ہوں؟ مجھے اسٹریچر پر کیوں باندھا گیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ عورت نے اسے جھڑک کر کہا، بکواس بند کرو لڑکی، تم جہاں آ چکی ہو اب یہاں سے تمہاری روح ہی نکل کر باہر جائے گی۔ لڑکی کا رنگ زرد ہو گیا، خوف سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو لندن اپنی آنٹی کے پاس جا رہی تھی، گھوڑا گاڑی مجھے کہاں لے آئی ہے؟ دبلی عورت نے لڑکی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بلی کی طرح غرا کر کہا۔ اس سے پہلے جو بھی لڑکیاں یہاں آئی تھیں وہ بار بار یہی سوال پوچھتی تھیں، مگر آج ان کے ڈھانچے اور آدھی کٹی ہوئی کھوپڑیاں تہخانے میں پڑی ہیں۔ اور وہ عورت ایک شیطانی کہکا لگا کر ہنسی اور بطخ کی طرح مٹک مٹک کر چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سے اس نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اس سیاہ دیواروں والے جہنمی تاریک کمرے میں ایک دردناک خاموشی چھا گئی۔ پھر اس خاموشی میں نیلی آنکھوں والی لڑکی کی سسکیاں بھر کر رونے کی آواز آنے لگی۔ اس آواز نے کمرے کی ماتمی فضا کو اور زیادہ دردناک بنا دیا۔ ماریا سوچنے لگی اسے کیا کرنا چاہیے، اسے اپنا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ڈرامے کو کافی دیر تک تماشائی بن کر دیکھ چکی تھی۔ اب اس کے حملہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کیا وہ لڑکی سے بات کرے؟ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ ماریا اپنی موجودگی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر وہاں کچھ مجبوری دکھائی دے رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماریا لڑکی سے بات کرنے ہی لگی تھی کہ تالا کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ذرا رک گئی۔ دروازہ کھول کر سیاہ پوش اندر آ گیا۔ لڑکی نے اسے دیکھتے ہی چیخ ماری اور روتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ سیاہ پوش نے گھبرا کر لڑکی کو دیکھا، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ بجلی کی تیزی کے ساتھ ماریا کے دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پوش نے جیب سے بے ہوش کرنے والی دوائی نکال کر زبردستی لڑکی کے ناک پر لگا دی۔ لڑکی ایک بار تڑپی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ سیاہ پوش نے جلدی جلدی تسمے کھول کر لڑکی کا کوٹ اتار کر پرے پھینکا اور اس کے اوپر الماری میں سے سفید چادر نکال کر اس کے سارے جسم کو ڈھانپ دیا۔ پھر چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے تسمے کس کر باندھ دیے۔ وہ لڑکی کے سر کی طرف آ گیا۔ اس نے بے ہوش لڑکی کے سر پر ماتھے سے نیچے تک ایک سفید ٹوپی پہنا دی۔ اب لڑکی کا صرف ماتھے سے اوپر سر ہی ننگا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے سارے بال کاٹ ڈالے۔ ماریا حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ہر حالت میں لڑکی کو اس وحشی درندے سے بچانا تھا۔ سیاہ پوش اس کام سے فارغ ہو کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنے منہ پر آیا ہوا پسینہ پہنچا اور باہر نکل گیا۔ ماریا اس کو قابو کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے باہر سے اس نے دروازے پر تالا نہیں لگایا تھا۔ ماریا کے سامنے اسٹریچر پر لڑکی اس طرح بندھی پڑی تھی کہ سوائے اس کے کٹے ہوئے بالوں والے سر کے جسم کا کوئی اور حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے منہ پر ایسی ٹوپی چڑھا دی گئی تھی جو سر کے درمیان سے کھلی تھی۔ وہ گویا لڑکی کی کھوپڑی کاٹ کر اس کا مغز نکالنے کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ ماریا سیاہ پوش کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو اس کو قابو میں کر کے تمام پہلے کے قتل کی گئی لڑکیوں کا اس سے بدلہ لیا جائے۔ ماریا کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ماریا ہوشیار ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور وہی دبلی پتلی مکار بڑھیا اندر داخل ہوئی جو ہر لڑکی کی کھوپڑی کاٹنے میں سیاہ پوش کی مدد کیا کرتی تھی اور یوں ہر قتل میں اس کی برابر کی شریک ہوتی تھی۔ وہ اگر چاہتی تو لڑکیوں کو وہاں سے بھگا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا بدقسمت لڑکیوں کو یہ کہہ کر اذیت دیا کرتی تھی کہ فکر نہ کرو، ابھی تمہاری روح یہاں سے نکل جائے گی، ابھی تمہاری کھوپڑی کاٹ کر تہخانے میں پھینک دی جائے گی۔ اس لیے یہ عورت بھی قاتل تھی۔ اسے دیکھ کر ماریا کے ذہن میں ایک انوکھا خیال بجلی کی طرح چمکا۔ وہ مسکرائی۔ یہ بڑا ہی دلچسپ خیال تھا۔ عورت کے ہاتھ میں آپریشن کے اوزاروں والا تشت تھا۔ یہ تشت اس نے تپائی پر رکھا اور واپس مڑی کے دروازے سے نکل کر باہر چلی جائے۔ دروازے میں ماریا کھڑی تھی جسے وہ قاتل عورت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماریا نے اس عورت کی کنپٹی پر پورے زور سے ایک بھرپور مکہ مارا۔ عورت چکر کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ماریا نے بڑی پھرتی سے بے ہوش لڑکی کے اوپر سے چادر کھینچ کر پرے پھینکی، تسمے کھول کر اسے اسٹریچر سے اتار کر نیچے فرش پر رکھا۔ اس کی جگہ قاتل عورت کو اسٹریچر پر لٹا کر تسمے کس کر باندھے، اس کے اوپر سفید چادر ڈال کر سارا جسم ڈھانپا، پھر تش میں سے کینچی اٹھا کر اس کی کھوپڑی کے بال کاٹے، لڑکی کے منہ پر ڈالی ہوئی بند ٹوپی اتار کر عورت کے منہ پر پہنا دی اور گردن کے اوپر والا تسمہ بھی کس کر باندھ دیا۔ اب ماریا کے سامنے ویسے ہی قاتل عورت چادر اور ٹوپی کے نقاب کے اندر بے ہوش پڑی تھی، جس طرح تھوڑی دیر پہلے نیلی آنکھوں والی لڑکی پڑی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف کھوپڑی ننگی تھی۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی فرش پر پڑی تھی۔ ماریا نے جلدی سے بے ہوش لڑکی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ ماریا کے کندھے پر آتے ہی لڑکی بھی ماریا کے ساتھ ہی غائب ہو گئی، کیونکہ زمین سے وہ اوپر اٹھائی تھی اور اس کے پاؤں زمین سے نہیں ٹکرا رہے تھے۔
मारिया दरवाजे में से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ मोमबत्ती जल रही थी। मारिया ने लड़की को कंधे पर उठा रखा था और वो किसी महफूज जगह पर रखना चाहती थी। उस कमरे से आगे सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल को जाती थी। मारिया ऊपर आ गई, फिर वो मकान की जोड़ी से गुजरकर बाहर खुली फजा में आ गई। यहाँ उसने आकर पहली बार देखा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। मारिया लड़की को कंधे पर उठाए हुए मकान के अकब में आ गई। यहाँ एक टूटी हुई छत वाला पुराना गैराज बना हुआ था। वहाँ शायद किसी ज़माने में घोड़ा गाड़ी रखी जाती थी। गाड़ी के 2 बड़े बड़े पहिए दीवार के साथ लगे थे। फर्श पर घास का ढेर पड़ा हुआ था। मारिया ने नीली आंखों वाली बेहोश लड़के को घास पर लिटा दिया। उसके ऊपर भी खुश्क घास डाल दिया ताकि उसे सर्दी न लगे। यहाँ अंधेरा था। इस काम से फारिग होकर मारिया तेजी से वापस तहखाने में आ गई। कातिल नौकरानी उसी तरह स्ट्रेचर पर तस्मों में बंधी हुई बेहोश पड़ी थी। उसका सारा जिस्म माथे से लेकर नीचे पांव तक चादर में ढका हुआ था। उसे देखकर किसी को शक नहीं हो सकता था कि यह नौकरानी यानी कातिल औरत है और नीली आंखों वाली लड़की नहीं है। इतने में स्याह पोश के कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और स्याह पोश अंदर दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद डॉक्टरों वाला लंबा कोट पहन रखा था। मुंह पर भी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों जैसी सफ़ेद पट्टी बंधी थी। वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार होकर आया था। उसने आते ही औजारों वाली मेज़ पर से एक बारीक आरी उठाई और कातिल नौकरानी के सिराने की तरफ आ गया। कमरे में लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी ज़्यादातर कातिल औरत के सर पर पड़ रही थी। स्याह पोश स्ट्रेचर के सराने की तरफ स्टूल पर बैठ गया। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो जिस औरत की खोपड़ी काटने लगा है वो नीली आंखों वाली लड़की नहीं बल्कि खुद उसकी नौकरानी है। स्याह पोश की आंखों में दरिंदों जैसी चमक आ गई थी। उसने तेज़ दंदानों वाली आरी को सीधे रुख नौकरानी के माथे से ज़रा ऊपर रखा और पूरी ताकत से उसे आगे पीछे चलाने लगा, जिस तरह कोई तरखान लकड़ी काटता है। खून निकल कर उसके हाथों पर से होता हुआ उसके सफ़ेद कोट और फर्श पर गिरने लगा। स्याह पोश पूरा दरिंदा बन चुका था। वो किसी वहशी जल्लाद की तरह आरी चला रहा था। खोपड़ी माथे पर से कट चुकी थी और उसके अंदर से अब सफ़ेद सफ़ेद दिमाग का गूदा खून के साथ बाहर निकलने लगा था। स्याह पोश ने रुमाल से माथे पर से खून साफ किया, गूदे को चम्मच से उठाकर प्याले में डाला और दूसरे रुख से आरी चलाना शुरू कर दी। खोपड़ी में आरी चलने की घर घर की आवाज़ आ रही थी। मारिया खामोशी से यह खूनी मंजर देख रही थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि एक कातिल औरत दूसरे कातिल मर्द के हाथों अपने इबरतनाक अंजाम का पहुंच रही थी। स्याह पोश को अभी तक यही मालूम था कि वो नीली आंखों वाली लड़की की खोपड़ी काट रहा है। वो जोर शोर से अपने काम में लगा हुआ था। उसके माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे थे। खोपड़ी पूरी तरह कट चुकी तो स्याह पोश ने लपक कर तश में से एक हथौड़ी उठाई और नौकरानी के माथे पर एक तरफ आहिस्ता से मारी। कातिल औरत की आधी खोपड़ी आधे कट्टे नारियल की तरह उसके हाथ में आ गई। औरत का सारा दिमाग अखरोट के गूदे की तरह उसके बगैर खोपड़ी के सर पर ही लगा रह गया था। उसमें से सफ़ेद सफ़ेद मादा सुर्ख खून के साथ रिस रहा था। स्याह पोश मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने हथौड़ी फेंक कर एक बड़ा प्याला और चम्मच उठा लिया, फिर औरत के दिमाग को सारे का सारा खुरच कर प्याले में डाल लिया। मारिया ने आगे बढ़कर देखा, कातिल औरत के सर का बाकी आधा हिस्सा बिल्कुल खाली हो चुका था। उसका सफ़ेद सफ़ेद दिमाग प्याले में पड़ा था। स्याह पोश ने प्याला तपाई पर रखकर पसीना पहुंचा, गिले तौलिए से हाथ मुंह पर लगे हुए खून के छींटे साफ किए। वो सफ़ेद कोट उतारकर एक तरफ रख दिया जिस पर कातिल औरत के खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। स्याह पोश अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। एक कातिल ने दूसरे कातिल को हलाक कर दिया था। मारिया अब इस ड्रामे का आखिरी चौंका देने वाला सीन देखने का इंतजार कर रही थी। आखिरी वो सीन भी शुरू हो गया। स्याह पोश औरत के जिस्म से चादर उतारने लगा। लैंप की मध्यम रोशनी में वही नौकरानी का जिस्म स्ट्रेचर पर साफ नजर आने लगा। स्याह पोश को एक झटका सा लगा। चादर उसके हाथ में पकड़ी रह गई। चादर एक तरफ फेंक कर वो तेजी से औरत के मुंह की तरफ आया और उसके मुंह पर पड़ा हुआ खून आलूद नकाब उतारकर परे फेंक दिया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो खौफजदा सा होकर पीछे दीवार के साथ लग गया और फटी फटी आंखों से स्ट्रेचर को देखने लगा, जिस पर उसकी पुरानी और वफादार नौकरानी की बगैर खोपड़ी के खून आलूद लाश पड़ी थी। उफ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसे हो गया? लड़की कहाँ चली गई? इसे यहाँ किसने बांधा? स्याह पोश दोनों हाथों से सर को थामे अपने आप तकलीफ दे अंदाज से बुड़बुड़ा रहा था। ये वो सवाल थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था और जिसका जवाब उसके पास मारिया की शक्ल में था, मगर जिसे वो नहीं देख सकता था। मारिया उसकी हालत देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अभी उसका अपना अंजाम बाकी था। मारिया का नहीं बल्कि स्याह पोश कातिल का, जिसकी गर्दन पर न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों का खून था। अब उसकी बारी थी। मारिया उसे छोड़ नहीं सकती थी। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी ताकि फिर कोई मासूम लड़की उसकी दरिंदगी का शिकार ना हो। स्याह पोश पागलों की तरह सारे घर और तहखानों में नीली आंखों वाली लड़की को तलाश करने लगा। उसे यकीन नहीं आ सकता था कि वो अपने आप स्ट्रेचर से उठकर भाग सकती है। किसी ने ज़रूर उसकी मदद की है और उसकी जगह नौकरानी को बेहोश करके स्ट्रेचर पर डाल दिया है, मगर वो पुरस्रार शख्स कौन था? स्याह पोश अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। वो कुछ डरा डरा सा भी था। उसे वहम सा होने लगा था कि मकान के अंदर कोई बदरू घुस आई है। मारिया उसके साथ साथ लगी हुई थी। उस वक्त भी वो उसके करीबी तपाई पर पाँव लटकाए बैठी थी और मज़े ले लेकर स्याह पोश कातिल की
ذہنی پریشانی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ماریا آہستہ آہستہ اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے تپائی پر رکھا ہوا چینی کا بڑا گلدان فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے چھناکے کی آواز پر سیاہ پوش قاتل گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے کمرے میں؟ ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سے کھیل رہی تھی جس طرح بلی کبھی کبھی چوہے سے کھیلا کرتی ہے۔ سیاہ پوش اٹھ کر میز کے پاس آ گیا، جھک کر گلدان کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ ماریا آہستہ سے اٹھ کر سیاہ پوش کے پلنگ کے پاس آ گئی۔ وہاں اس کا خون سے بھرا ہوا سفید کوٹ کونے میں پڑا تھا۔ ماریا نے اسے اٹھا کر زور سے سیاہ پوش کے منہ پر دے مارا۔ سیاہ پوش خوفزدہ ہو کر پیچھے کو گرا۔ اسے پسینہ آ گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے پلنگ کی طرف تک رہا تھا کیونکہ کوٹ اسی طرف سے آیا تھا۔ اس نے خشک لرزتی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ ماریا نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آرام کرسی کی طرف آ گئی۔ یہاں میز پر سیاہ پوش کی چاندی کی موٹ والی چھڑی پڑی تھی۔ سیاہ پوش نے دیکھا کہ چھڑی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ چھڑی ماریا نے اٹھا لی تھی، پھر چھڑی بڑے زور سے اس کی گردن پر آ کر پڑی۔ سیاہ پوش کی چیخ نکل گئی اور چھڑی دو ٹکڑے ہو کر فرش پر گر پڑی۔ سیاہ پوش اب غصے میں آ گیا۔ اس کی مونچھیں پھڑکنے لگیں۔ وہ چلایا، تم اگر بھوت ہو تو سن لو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کو پڑھ کر میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ نہیں تو بتاؤ تم کون ہو؟ اب ماریا نے زبان کھولی اور کہا، سنو، میں اس لڑکی کی روح ہوں جسے تم نے پچھلے ہفتے قتل کر کے اس کا دماغ اجدھا اور اس کے بچوں کو کھلا دیا تھا۔ سیاہ پوش نے کہا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ماریا نے کہا، کچھ لینے نہیں آئی، صرف تمہارا دماغ کھوپڑی میں سے نکال کر تمہارے سانپوں کو کھلانے آئی ہوں۔ سیاہ پوش کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تو کیا تم نے؟ ماریا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں، میں نے ہی نیلی آنکھوں والی لڑکی کو غائب کر کے اس کی جگہ تمہاری ساتھی نوکرانی قاتل نوکرانی کو اسٹریچر پر لٹا دیا تھا۔ سیاہ پوش کمرے میں اس طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے اسے ماریا کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اب بھی روح پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید روح اس کی باتوں سے ڈر کر بھاگ جائے، مگر یہ روح بھاگنے والی شے نہیں تھی۔ یہ ماریا تھی جسے ہمیشہ ظالم لوگوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا تھا اور نیک دار لوگوں کی اپنی جان مصیبت میں ڈال کر بھی مدد کی تھی۔ سیاہ پوش ایک بار پھر روبدار آواز میں بولا، سن اے روح، تم سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو قتل کر کے ان کے دماغ سانپوں کو کھلا چکا ہوں۔ ان کی روحیں بھی مجھ سے انتقام لینے آئی تھی، مگر میں نے اپنا خاص عمل پڑھ کر انہیں اپنے تہخانے کے اندھے کنویں میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر تو اپنی خیریت چاہتی ہے تو یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو تمہارا بھی دوسری روحوں جیسا انجام ہوگا۔ ماریا جانتی تھی یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ اس کی دھمکیوں کی بھلا کیا پرواہ کرتی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، سن اے قاتل درندے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اب تو اپنی کھوپڑی کا آپریشن کروانے کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ تمہارے سانپ بڑے بھوکے ہیں اور وہ تمہارے گرم گرم نرم برگردار دماغ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو سیاہ پوش کچھ گھبرایا کیونکہ روح پر اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ماریا بھی سمجھ گئی کہ وہ فرار ہونے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تمہارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہاں سے سیدھا تمہارے تہخانے کو جاتا ہے، جہاں اسٹریچر اور آپریشن کے اوزار، چاقو، چھریاں اور آریاں تمہاری کھوپڑی کا انتظار کر رہی ہیں۔ سیاہ پوش کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کیا کرے، کدھر بھاگے، اس روح سے کیسے جان چھڑائے؟ کمرے کی کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ ماریا بھی اس کو زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ خطرہ تھا کہ اسے فرار ہونے کا موقع نہ مل جائے۔ اس نے آخری حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیاہ پوش کے پیچھے آ گئی۔ سیاہ پوش کے گاؤن میں سے روشمی ڈوری نکالی اور پیچھے سے سیاہ پوش کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سیاہ پوش جیسا بھاری بھرکم آدمی بھی بے بس ہو کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دونوں بازو کسی نے لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیے ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور ماریا کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ چوہا بلی کے پنجے سے نکل گیا تھا۔ سیاہ پوش کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ ماریا چھلانگ لگا کر اس کے آگے آ گئی۔ اس نے ریشمی رسی سیاہ پوش کی گردن میں ڈال کر بل دینے شروع کر دیے۔ سیاہ پوش نے اب دونوں ہاتھوں سے رسی کو پیچھے کرنے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن ماریا کا حملہ بڑا کامیاب اور درست رہا تھا۔ رسی سیاہ پوش کی گردن میں دھستی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ ماریا اسے کھینچتی ہوئی سیڑھیوں میں لے آئی، پھر اسے تہخانے کے برآمدے میں سے گھسیٹتی ہوئی آخر اس تہخانے میں لے آئی جہاں اسٹریچر پر ابھی تک قاتل نوکرانی کی آدھے سروری لاش پڑی تھی۔ سیاہ پوش پوری طاقت خرچ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گردن کے پھندے نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ماریا نے اسے دھکا دے کر فرش پر منہ کے بل گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماریا نے ریشمی رسی سے سیاہ پوش کے دونوں پاؤں جکڑ دیے۔ وہ اچھل اچھل کر ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ ماریا نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، جو سلوک تم دوسروں کے ساتھ کرتے تھے وہی سلوک اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سیاہ پوش نے کہا، اے روح، مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں نیک زندگی بسر کروں گا۔ ماریا نے کہا، تمہارا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تم ایک کمینے اور ظالم جلاد ہو۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا گیا تو قیامت کے دن مجھ سے ان لڑکیوں کی روحیں جنہیں تم نے یہاں لا کر مار ڈالا ضرور سوال کریں گی کہ میں نے ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے تمہارے ساتھ رحم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تم نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ ماریا نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر پیچھے کھینچا اور رسی سے جکڑ ڈالے۔ سیاہ پوش بے بس ہو کر فرش پر پڑا تھا۔
मारिया ने औरत की लाश को स्ट्रेचर से उठाकर कोने में फेंका और स्याह पोश को यूं उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया जिस तरह कोई फर्श पर से पेंसिल उठाकर मेज पर रखता है। मारिया ने अपनी पूरी ताकत को बेदार कर लिया था। स्याह पोश तड़प रहा था, उछल रहा था और भागने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, मगर मारिया की गिरफ्त से निकलना आसान बात नहीं थी। मारिया ने बड़ी तेजी से स्याह पोश को स्ट्रेचर पर चमड़े के तस्मों से खूब कस दिया। मारिया ने कहा, इस तरह तुम मासूम लड़कियों को बेहोश करके बेबस कर दिया करते थे, मगर मैं तुम्हें बेहोश नहीं करूंगी, तुम्हारी खोपड़ी जिंदा हालत में काटूंगी। स्याह पोश ने चीख मारकर कहा, खुदा के लिए ऐसा ना करना, मुझे बेहोश कर दो, मेरे सर पर हथौड़ा मारकर मुझे बेहोश कर दो, मुझे बड़ा अजाब ना दो। मारिया ने कहा, तुमने आज तक किसी पर रहम नहीं खाया, तुमने जाने कैसे कैसे घरों की भोली भाली लड़कियों की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे सर पर टोपी भी नहीं डालूंगी। स्याह पोश तड़प तड़प कर स्ट्रेचर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर चमड़े के तस्मे बड़े मजबूत थे और वो एक मुंह जोर घोड़े की तरह बंधा हुआ था। मारिया ने किसी माहिर सर्जन की तरह ट्रे में से आरी उठाई और स्याह पोश की खोपड़ी पर सीधी रख दी। ठंडी आरी के तेज दंदाने स्याह पोश के सर में लगे तो उस पर मौत की कुपकुपी छा गई, वो कांपने लगा। मारिया ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हारी अजदा नागिन हेलन और उसके बच्चे खा रहे होंगे, बड़े मजे ले लेकर। मारिया ने आरी चलाना शुरू कर दी। मारिया में ताकत बहुत ज्यादा थी, उसके हाथों का आरी पर बड़ा जबरदस्त दबाव था। चुनाचे आरी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई कि स्याह पोश की चीखें निकल गई। आरी ने उसकी आधी खोपड़ी काट डाली थी, खून ने उसके चेहरे को सुर्ख कर दिया था। मारिया के हाथ चलते रहे, आरी आगे पीछे होती रही और स्याह पोश की चीखें बुलंद होती नहीं। स्याह पोश तकलीफ और दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया। मारिया ने उसकी खोपड़ी काट कर अलग फेंक दी, उसका मगज प्याले में निकाल कर डाला और तहखाने में से निकलकर राहदारी में से गुजरकर उस पिंजरे में आ गई जिसके अंदर संदूक में अजदा और उसके बच्चे बंद थे। पिंजरे पर ताला लगा था, लेकिन मारिया बड़ी आसानी से पिंजरे के अंदर चली गई। उसने संदूक का ढकना उठाया, अजदा अपनी लाल लाल जुबान लहराकर फुनकारा, दूसरे सांप भी मुंह खोलकर फुनकारे मारने लगे, वो भूखे थे। मारिया ने स्याह पोश कातिल के मगज से भरा हुआ प्याला उनके ऊपर उलट दिया। अजदा और उसके सांप बच्चे मगज पर टूट पड़े और उसे चाट चाट कर खाने लगे। मारिया ने संदूक का ढकना बंद कर दिया। उसका काम खत्म हो गया था, लेकिन एक आखिरी छोटा सा काम बाकी था। उसने इधर उधर से पुराने कपड़े और घास जमा करके पिंजरे के अंदर सांपों के संदूक पर रख दी, फिर जलती हुई मशल को दीवार से उतारकर घास के ऊपर फेंक दिया। वहां फौरन आग लग गई। मारिया उन सांपों को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी जिन्होंने इंसानी मगज खाकर परवरिश पाई थी। मारिया यहां से निकलकर उस तहखाने में आ गई जहां स्ट्रेचर पर स्याह पोश की लाश और फर्श पर उसकी कातिल और वफादार नौकरानी की लाश पड़ी थी। लैंप जल रहा था। मारिया ने लैंप उतारकर उसका सारा तेल लाशों और अलमारी पर छिड़का और लैंप को जोर से दीवार पर दे मारा। तेल ने एकदम आग पकड़ ली। मारिया तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। यहाँ स्याह पोश का पलंग और बिस्तर पड़ा था। यहाँ भी कोने में एक लैंप रोशन था। मारिया ने यहाँ भी लैंप बिस्तर पर उलट दिया। पलंग ने फौरन आग पकड़ ली। मारिया मकान से बाहर निकल आई। बाहर बूंदाबांदी रुक गई थी। अचानक मारिया को नीली आंखों वाली लड़की के गर्म कोट का ख्याल आया जो स्याह पोश ने उतार कर फर्श पर फेंक दिया था। बाहर बड़ी सर्दी थी। अभी मारिया ने नीली आंखों वाली लड़की के पास जाना था ताकि उसे उसके घर पहुंचा सके। कोट के बगैर तो उसे ठंड लगेगी। मारिया कोट लेने वापस मकान में दाखिल हुई। वो तहखाने की सीढ़ियां उतरकर ऑपरेशन वाले कमरे के करीब गई तो वहां जबरदस्त आग लगी थी और दोनों शैतानों की लाशें जल रही थी। वहां धुआं ही धुआं था। मारिया आग में जा सकती थी, मगर आग में जाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि नीली आंखों वाली लड़की का कोट भी जल रहा था। वो वापस मकान से बाहर निकल आई। अब ऊपर वाली मंजिल की खिड़कियों से भी धुआं निकलने लगा था। कमरे की हर शे आग में जल रही थी। मारिया भागकर मकान के पिछवाड़े घोड़ा गाड़ी के अस्तबल में आई। एक धड़का उसे लगा था कि कहीं लड़की होश में आने के बाद वहां से गायब ना हो गई हो। जब उसने घास पर देखा तो धक से रह गई। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। नीली आंखों वाली लड़की गायब हो चुकी थी। जाहिर है उसे होश आया होगा और वह अस्तबल से निकलकर भाग गई होगी ताकि स्याहपोश कातिल से अपनी जान बचा सके। मारिया से उसकी अभी तक कोई बात नहीं हो सकी थी। मारिया परेशान हो गई कि इस सर्द अंधेरी बारिश वाली सुनसान रात में वो अकेली कहाँ गई होगी। कहीं वो किसी डाकू के हत्थे न चढ़ जाए। उस जमाने में डाकू औरतों को उठाकर ले जाते थे और फिर दूसरे मुल्क में उन्हें कनीज़ें बनाकर बेच देते थे। मारिया मकान के बड़े दरवाजे से निकलकर लकड़ी के पुल की तरफ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्याहपोश कातिल के जुल्मों सितम का 2 मंजिला महल आग की लपेट में धड़ाधड़ जल रहा था। आधी रात का वक्त, ठंडी हवा और काली घटाएं। मारिया सोचने लगी कि नीली आंखों वाली लड़की इस सर्द अंधेरी रात में अकेली कहाँ गई होगी। बारिश की वजह से एक तो सर्दी ज्यादा हो गई थी, दूसरे खेतों के बीच में से जाते रास्ते में जगह जगह पानी खड़ा था। ये रास्ता खेत चक्कर खाता लकड़ी के पुल वाली सड़क पर निकल जाता था। मारिया खेत की ढलान से उतरकर नीचे आई तो देखा कि पीछे स्याहपोश का 2 मंजिला मकान शैलों की लपेट में था। आग के जर्द और नीले शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मकान के इर्द गिर्द का इलाका रोशन हो गया था। मारिया ने सोचा कि इस किस्म के मकान का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं आखिर वो जहन्नम के शोलों में डाल दिए जाते हैं। मारिया लकड़ी के पुल पर उस जगह आ गई जहां से वो पुरस्रार स्याहपोश के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार हुई थी।
ماریا کو کوچوان ہنری کا خیال آ گیا۔ سیاہ پوش کے بھیانک گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ اس کا زندہ رہنا بھی انسانیت کے لیے سخت نقصان دہ تھا۔ اسے بھی اپنے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ ہاں، ماریا نے سوچا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور مل کر رہتی ہے۔ کوچوان ہنری بھی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتے گا۔ ماریا نے چاروں طرف ایک نگاہ ڈالی۔ رات اندھیری اور قبر کی طرح تاریک تھی۔ آسمان پر سیاہ گٹائیں چھائی تھیں۔ سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ نیلی آنکھ والی لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا تھا؟ ماریا کو طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ ایک دم سے ماریا کے کانوں میں کسی عورت کی چیخ کی آواز آئی۔ یہ آواز کافی فاصلے سے آئی تھی۔ ماریا نے چونک کر اس کچی سڑک کی طرف دیکھا جو کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی سیاہ پوش کے جلتے ہوئے مکان کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرے میں ماریا کو ادھر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر بھی وہ جدھر سے چیخ کی آواز آئی تھی ادھر کو چل پڑی۔ وہ بہت تیز تیز چل رہی تھی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ماریا تیز چلے تو وہ زمین سے تھوڑا سا بلند ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اڑ رہی ہے۔ بادلوں میں جب بجلی چمکی تو سارا علاقہ ایک پل کے لیے روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں ماریا کو دور ایک گھوڑا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ بجلی چمک کر بجھ گئی اور اس کے ساتھ ہی بادل زور سے گرجا۔ ماریا نے گھوڑے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اندھیرے میں اسے اب گھوڑے کا سایہ سا بھاگتا دکھائی دینے لگا۔ پھر اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہی چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی، مگر اب یہ چیخ دبی دبی گھٹی گھٹی تھی، جیسے کسی نے عورت کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہو۔ ماریا کو آواز پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی۔ یہ اسی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی آواز تھی۔ ماریا نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ زمین سے ایک گز اونچی ہو کر ہوا میں تیر رہی تھی۔ وہ آن کی آن میں گھڑ سوار کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ گھڑ سوار نے آگے نیلی آنکھوں والی لڑکی کو ڈال رکھا تھا اور گھوڑا دوڑائی چلا جا رہا تھا اور لڑکی کو اغوا کر کے لیے جا رہا تھا۔ ماریا کی رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ گھڑ سوار کے آگے نکل کر سامنے آ گئی۔ جو گھوڑا اس کے قریب سے گزرا اس نے زمین سے اوپر اٹھے اٹھے گھوڑے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گھوڑے کو منہ کے بل گرانا نہیں چاہتی تھی، اس طرح سے لڑکی کو سخت چوٹ لگنے کا خطرہ تھا۔ گھوڑے نے اپنی آنکھوں پر کسی غیبی روح کا ہاتھ محسوس کیا تو زور سے ہنونایا اور اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھا لیں اور وہیں خوف کے مارے چکر کھانے لگا۔ گھڑ سوار اور لڑکی دونوں کھیتوں میں گر پڑے۔ ماریا نے لپک کر لڑکی کو دیکھا۔ وہ ڈر کے مارے سہمی ہوئی کھیت میں پڑی تھی۔ گھڑ سوار الٹ کر کچے راستے پر گرا تھا اور اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ ماریا نے اس کے پاس جا کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ لڑکی وہی نیلی آنکھوں والی تھی اور دہشت اور سردی کے مارے کانپ رہی تھی۔ ماریا نے گھڑ سوار کا لمبا کوٹ اتار لیا۔ کوٹ اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ ماریا لڑکی کے پاس آ گئی۔ اس نے گرم کوٹ ٹھٹرتی لڑکی کے اوپر پھینک دیا۔ غیب سے اپنے اوپر ایک کوٹ کو گرتے دیکھ کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر کہا، میری آواز سن کر ڈرنا نہیں، میں نہ تو کوئی چڑیل ہوں، نہ کوئی بدروح ہوں اور نہ کوئی بھوت ہوں۔ لڑکی نے جو ایک دوسری لڑکی کی آواز سنی جو اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی تو وہ اور زیادہ خوف سے کپ کپانے لگی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ماریا نے کہا، میں تمہاری طرح کی ایک لڑکی ہوں، میرا نام ماریا ہے، میں کرسچن ہوں، مجھ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ ماریا نیلی آنکھوں والی لڑکی کا خوف دور کرنے کے لیے ایک دم سے اسے سب کچھ سچ سچ بتا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے ہی تمہیں سیاہ پوش خونخوار انسان کے گھر سے اٹھا کر استبل میں لا کر رکھا تھا۔ تم بے ہوش تھی اور وہ درندہ انسان تمہاری کھوپڑی کاٹنے والا تھا۔ میں اس گھوڑا گاڑی میں سفر کر رہی تھی جس میں تم بھی سوار تھی، اور سیاہ پوش قاتل نے تمہیں بے ہوشی کی دوا سونگنے کو دی تھی۔ تم بالکل گھبراؤ نہیں، اس گھر کو آگ لگ چکی ہے اور وہ ظالم قاتل اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری سہیلی ہوں، مجھے اپنی دوست سمجھو۔ میرا نام ماریا ہے اور میں کرسچن ہوں اور تمہاری طرح ایک لڑکی ہوں۔ مجھے جادو کے ذریعے ایک جادوگر نے غائب کر رکھا ہے۔ کیا تم میری باتیں سن رہی ہو؟ لڑکی نے ساری لا کر آہستہ سے کہا، ہاں، مگر تم مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ تم ضرور کوئی بھوت ہو۔ ماریا نے ہنس کر کہا، اگر میں بھوت ہوتی تو تمہاری مدد کیوں کرتی؟ کیا کبھی بھوت بھی کسی انسان کے ساتھ اس طرح ہمدردی کیا کرتے ہیں؟ وہ تو انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اٹھو اور یہ گرم کوٹ اوپر لے لو، تمہیں بھگا لے جانے والا اپنی موت اب مر چکا ہے۔ آؤ میرے ساتھ لکڑی کے پل پر، میں تمہیں تمہارے گھر تک لندن چھوڑ کر آؤں گی۔ تم لندن جا رہی تھی نا؟ ہاں، لڑکی نے کہا۔ ماریا کی اتنی لمبی گفتگو سن کر اس کا دل کا خوف کچھ دور ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لمبا گرم کوٹ اپنے کندھوں پر ڈال کر آگے سے بند کر لیا اور اس کے کالر اوپر چڑھا دیے۔ ماریا نے کہا، آؤ اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ لڑکی گھوڑے پر بیٹھ کر لکڑی والے پل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پل پر آ کر ماریا نے کہا، میں تمہارے ملک میں پہلی بار آئی ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آدھی رات کے بعد یہاں کوئی مسافر گھوڑا گاڑی آتی ہے؟ لڑکی نے کہا، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو مسافر گاڑی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماریا نے پوچھا، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ ماریا نے پھر پوچھا، تم مجھ سے ڈرتی تو نہیں نا؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن وہ ابھی تک ماریا سے تھوڑا تھوڑا ڈر رہی تھی۔ ماریا اس کا رہا سا خوف دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے لندن کے بارے میں لڑکی سے پوچھا، پھر اس کا نام پوچھا۔ لڑکی نے کہا، میرا نام الزبتھ ہے، میں چیلسی لندن میں اپنی آنٹی کے پاس جا رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، میرے خدا، وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ ماریا نے کہا، خدا کا شکر ادا کرو الزبتھ، اس نے عین وقت پر مجھے بھیج کر تمہاری مدد کی، نہیں تو وہ درندہ اس سے پہلے کئی لڑکیوں کو کھوپڑیاں توڑ کر ان کا مغز اپنے سانپوں کو کھلا چکا تھا۔ مائی گاڈ،
एलिज़ाबेथ ने अपनी आंखों को हाथों से ढांप दिया। किस कदर भयानक बात है। मारिया ने कहा, मगर अब वो शख्स ऐसा नहीं कर सकेगा। जब मैं तुम्हें निकाल कर बाहर लाई थी तो उसके बाद उसके मकान को आग लग गई थी, मगर तुम वहां से भाग क्यों गई थी? ये तो मैंने तुम्हारी चीख की आवाज़ सुन ली थी, नहीं तो तुम्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ जाता। एलिज़ाबेथ ने रुक कहा, मैं सख्त डरी हुई थी। मैंने स्टेशन पर पड़े पड़े उस दुबली चुड़ैल की खौफनाक बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था कि ये लोग मुझे कत्ल करने वाले हैं। फिर उस स्याह पोश आदमी ने मुझे दोबारा बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्तबल में घास पर पड़े देखा। मेरे ऊपर भी घास पड़ी थी। मारिया ने हंसकर कहा, वो मैंने डाली थी ताकि तुम सर्दी से बची रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारा गर्म कोट और टोपी मकान के अंदर ही भूलाई थी। एलिज़ाबेथ के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका खौफ काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। वो कहने लगी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मुझे मकान के अंदर से किसने निकाल कर अस्तबल में फेंक दिया। मैं यही समझी कि खुदा ने मेरी मदद की है। मैं उठी और वहां से निकल खड़ी हुई। उस वक्त मैंने मकान की एक खिड़की से धुआं निकलते देखा था। मैं गिरती पड़ती किसी न किसी तरह खेतों में आ गई और अंदाजे से सड़क की तरफ चलने लगी। फिर एक घुड़सवार अंधेरे में घोड़ा दौड़ाता मेरे पास आया और उसने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर घोड़े पर डाल लिया। एलिज़ाबेथ खामोश हो गई। वो घोड़े पर खामोश और उदास बैठी थी। उसने अपने सर के कटे हुए बालों पर हाथ फेर कर कहा, उस शैतान ने मेरे बाल भी काट दिए। मारिया, तुमने मेरे बाल देखे थे ना? कितने लंबे लंबे भूरे बाल थे। एलिज़ाबेथ के मुंह से अपना नाम सुनकर मारिया को बड़ी खुशी हुई। उसे एलिज़ाबेथ अपनी प्यारी सहेली लगने लगी थी और अब एलिज़ाबेथ का खौफ भी दूर हो चुका था। मारिया ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे बाल और तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगी थी। खैर कोई बात नहीं, बाल फिर उगाएंगे। एलिज़ाबेथ ने अफसोस के साथ कहा, मेरी आंटी ने जब मेरे कटे हुए बाल देखे तो उसे बहुत दुख होगा। मारिया ने कहा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं एलिज़ाबेथ? एलिज़ाबेथ बोली, मैं छोटी सी थी कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब से लेकर मैं अपनी फूफी के घर पर पली हूँ। मेरे फूफा का लंदन में कपड़े का कारोबार है। एलिज़ाबेथ खामोश हो गई। बिजली कभी कभी बादलों में चमक जाती थी। बूंदाबांदी रुकी हुई थी। सर्द हवा उसी तरह चल रही थी। मारिया ने एलिज़ाबेथ से पूछा कि उसे सर्दी तो नहीं लग रही? उसने कहा, नहीं, ठीक है। जिधर से मारिया की आवाज़ उसे आ रही थी, एलिज़ाबेथ ने उस तरफ मुंह करके कहा, मारिया, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती? मारिया ने कहा, नहीं, मैं गायब हूँ। इस तरह से गायब हूँ कि कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैं अगर किसी शय को पकड़कर ज़मीन से उठा लूँ तो वो भी गायब हो जाएगी। एलिज़ाबेथ का हैरत से मुंह खुला था। उसने कहा, तुम कब से गायब हो? तुम पर, मेरा मतलब है तुम पर कभी किसी ने जादू किया था? मारिया ने कहा, आज से 4000 साल पहले। क्या? एलिज़ाबेथ की हैरत से चीख निकल गई। मारिया ने सोचा कि कहीं वो फिर खौफजदा ना हो जाए। जल्दी से बोली, मैं तुमसे मजाक कर रही थी एलिज़ाबेथ। असल में पिछले साल मैं अपने चाचा के साथ मिस्र से अफ्रीका के जंगल में शिकार खेलने गई तो एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया। मेरे भी माँ बाप मर चुके हैं और सिर्फ मिस्र में एक चाचा रहता है। एलिज़ाबेथ ने पूछा, तुम लंदन किस लिए आई हो? और तुम तो मिस्र से यहाँ तक हवा में उड़कर आई होगी। मारिया हंस पड़ी। हाँ, मैं मिस्र से यहाँ तक हवा में उड़कर आई हूँ, मगर हमें हवा में ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। बस ज़मीन से कोई 2-3 गज या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंजिल ऊंचा उड़ सकती हूँ। और हाँ, लंदन मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरे चाचा ने बताया कि लंदन में एक जादूगर रहता है जो रूहों को बुलाता है। हो सकता है वो मेरा इलाज करके मुझे फिर से इंसानी शक्ल में ले आए। मारिया ने यूं ही एलिज़ाबेथ की तसल्ली के लिए कह दिया था। इतने में दूर से घोड़ा गाड़ी की आवाज़ करीब आती सुनाई दी। एलिज़ाबेथ ने कहा, गाड़ी आ गई है। मारिया, तुम लंदन में हमारे यहाँ रहना। मैं आंटी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। रहोगी ना? तुम मेरे कमरे में मेरे साथ रहना। मारिया को लंदन में भी एक ऐसी जगह की जरूरत भी थी जहां रहकर वो शहर में नाग और अंबर को तलाश कर सके। उसने कहा, अगर तुम वादा करती हो कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। देखो, अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बता दिया तो ख्वामख्वाह वहां शोर मच जाएगा और इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे घर को भूत का घर कहने लगेंगे। वादा करती हो कि तुम मेरा जिक्र किसी से नहीं करोगी? वादा करती हूँ, एलिज़ाबेथ ने कहा। मारिया बोली, बस ठीक है, मैं तुम्हारे पास रहकर अपने इलाज के लिए जादूगर को तलाश करूंगी। एलिज़ाबेथ बड़ी खुश हो गई। अंधेरे में घोड़ा गाड़ी का साया पुल के करीब आता दिखाई दे रहा था। एलिज़ाबेथ ने कहा, मारिया, तुम गाड़ी के अंदर मेरे साथ बैठोगी या हवा में उड़कर साथ जाओगी? मारिया ने कहा, अब मुझे हवा में उड़ने की क्या जरूरत है भला? मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगी। मैं तो शाम को भी तुम्हारे साथ ही गाड़ी में बैठी थी। मुझे कोई महसूस नहीं कर सकता। मैं तो चाहूँ अगर किसी औरत की गोद में भी बैठ सकती हूँ और उसे मेरा ज़रा सा भी बोझ महसूस नहीं होगा। एलिज़ाबेथ ने बड़े शौक के साथ कहा, नहीं मारिया, तुम मेरे बिल्कुल साथ बैठना, बड़ा मज़ा रहेगा। मारिया ने कहा, लेकिन रास्ते में मुझसे कोई बात ना करना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। एलिज़ाबेथ हंस पड़ी। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। घोड़ा गाड़ी करीब आई तो एलिज़ाबेथ ने अपना घोड़ा आगे करके उसे रुकने का इशारा किया। मारिया ने कहा, इस घोड़े को यहीं छोड़ देना। गाड़ी पुल पर आकर रुक गई। कोचवान ने झुककर पूछा, कहाँ जाना है? मारिया और एलिज़ाबेथ ने चौंक कर ऊपर देखा। ये वही कोचवान हेनरी था जो सवारियां फंसाकर स्याहपोश के हाथ फरोख्त किया करता था। कोचवान ने भी नीली आंखों वाली लड़की को पहचान लिया। वो घूर कर एलिज़ाबेथ को तकने लगा। लड़की, तुम यहाँ कैसे आ गई? एलिज़ाबेथ ने कहा, तुमने तो मुझे कातिल के हाथ बेच दिया था, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। मैं लंदन पहुंचकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। गाड़ी में बैठी सवारियों में से एक मुसाफिर ने अपना सर बाहर निकाल कर कहा, हमारी राह क्यों खोटी करते हो? लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना, पहले हमें लंदन पहुंचाओ।
सवारियों को क्या मालूम कि उनका कोचवान एक खतरनाक इंसान दुश्मन दरिंदा है जो उनको कातिल के हवाले करने की नीयत लेकर चला है। कोचवान को फांसी का फंदा नजर आने लगा। उसने एलिजबेथ को जवाब देने के बजाय घोड़ों को चाबुक मारी और उन्हें दौड़ा दिया। घोड़े हवा से बातें करने लगे। मारिया ने एलिजबेथ से कहा, घोड़े पर इसका पीछा करो, ये भागकर कहीं नहीं जा सकता। एलिजबेथ ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और गाड़ी का ताकुब करने लगी। ढलती रात के सुरमई अंधेरे की धुंध में घोड़ा गाड़ी कच्ची सड़क पर भागी जा रही थी। एलिजबेथ भी अपने घोड़े को भगाए लिए जा रही थी। मारिया ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी थी और वह जमीन से 1 फुट बुलंद होकर हवा में उड़ी जा रही थी। गाड़ी के आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। कोचवान बड़ा तजुर्बेकार घोड़ा सवार था। चुनाचे वो काफी आगे निकल गया और एलिजबेथ का घोड़ा पीछे रह गया। उसने बुलंद आवाज में मारिया को पुकारा, मारिया, कातिल गायब हो रहा है। मारिया की तरफ से कोई जवाब न आया। एलिजबेथ का ख्याल था कि मारिया उसके साथ साथ भाग रही है और या फिर उसके घोड़े पर सवार है। ऐसा नहीं था। मारिया उससे काफी आगे जा चुकी थी और अब कातिल कोचवान हेनरी के सर के ऊपर पहुंच गई थी। उसे यह भी खतरा था कि अगर घोड़ा गाड़ी उलट गई तो मुसाफिर जख्मी हो जाएंगे। वो चाहती थी कि गाड़ी रोक दी जाए। कोचवान ने पीछे घूम कर देखा। उसे एलिजबेथ का घोड़ा कहीं दिखाई न दिया। गाड़ी के मुसाफिर परेशान होकर शोर मचा रहे थे कि वो गाड़ी को इतना तेज क्यों चला रहा है। कोचवान हेनरी बड़ा खुश हुआ कि वो मुश्किल से निकल आया है और अब कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन इंसान को दुनिया में जहां उसकी नेकी का अजर मिलता है वहां उसकी बुराई की भी उसे सजा जरूर मिलकर रहती है। मारिया गाड़ी के ऊपर कोचवान की साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। फिर उसने घोड़ों की बागें कोचवान के हाथों से झटक कर छीन ली। कोचवान हक्का बक्का सा हो गया कि उसके हाथों से बागें किसने छीन ली हैं। मारिया ने बागें खींचकर गाड़ी को रोक लिया और कोचवान के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम स्याहपोश खूनी दरिंदे के हाथों कत्ल होने के लिए मुसाफिर लड़कियों को फरोख्त करते थे। तुम अब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कोचवान हेनरी की खौफ के मारे जान निकल गई। उसने चीख मारी और भूत भूत कहकर गाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने कोचवान को पहाड़ी में भागते देखा तो चीख कर कहा, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, ये गाड़ी तुम्हारा बाप चलाएगा। इतने में एलिजबेथ भी घोड़े पर सवार वहां पहुंच गई। उसने मुसाफिरों से पूछा कि कोचवान कहाँ है। एक मुसाफिर ने बताया कि खुदा जाने वो पागल हो गया है, गाड़ी छोड़कर पहाड़ों की तरफ फरार हो गया है। एलिजबेथ समझ गई कि मारिया ने उसे डरा कर भगाया है और वो ज़रूर उसके पीछे गई होगी। एलिजबेथ ने मुसाफिरों से कहा, आप लोग फिक्र न करें, ये कोचवान एक मफरूर कातिल था, मैं इसे पकड़ कर लाती हूँ। अगर वो भाग गया तो गाड़ी मैं लंदन ले जाऊंगी। इतना कहकर एलिजबेथ पहाड़ियों की तरफ घोड़ा दौड़ाती चली गई। कोचवान पर भूत का खौफ सवार था। वो हाँपता कांपता टीलों में भागा चला जा रहा था और चूहे की तरह इधर उधर छुपने के लिए कोई पनाह ढूंढ रहा था। मगर मारिया उसके साथ साथ थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके कान में कह देती थी, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम खुदा के इंसाफ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। कोचवान के गुनाह उसकी आंखों के सामने आ गए थे। वो समझ गया कि जिन लड़कियों को उसने स्याहपोश के हाथों बेचकर कत्ल करवाया था उनकी रूहें उससे बदला लेने आ गई हैं। वो बखलाया हुआ था और एक चट्टान के ऊपर हाँफ हाँफ कर चढ़ रहा था। मारिया उसके साथ साथ थी और उसका तमाशा देख रही थी। कोचवान हेनरी को कुछ खबर नहीं थी कि चट्टान के दूसरी जानिब एक सैकड़ों फीट गहरी खाई है जिसके अंदर नोकीले पत्थर उभरे हुए हैं। वो चट्टान के ऊपर आकर रुक गया। उसका सांस धोंकने की तरह चल रहा था। मौत के खौफ से आंखें फटी फटी सी थी। मारिया ने कहा, यही वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। तुम्हारा रोज़े हिसाब आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोचवान हेनरी ने एक चीख मारी और चट्टान पर से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। गहरी खाई में दूर नीचे तक उसकी भयानक चीख की आवाज़ सुनाई देती रही। उसके बाद गहरी मौत की खामोशी छा गई। एक और कातिल को अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। मारिया चट्टान से उतरकर वापस सड़क की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसे एलिजबेथ का घोड़ा नजर आया। एलिजबेथ उस पर सवार थी। जब वो मारिया के करीब से गुजरी तो वो उछलकर एलिजबेथ के साथ घोड़े पर बैठ गई। एलिजबेथ को जरा सा भी महसूस न हुआ कि मारिया उसके साथ घोड़े पर सवार हो चुकी है। वो घोड़ा दौड़ाते चट्टान की तरफ भागी जा रही थी। मारिया ने उसके कान में कहा, वापस चलो एलिजबेथ। एलिजबेथ डर गई। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। एलिजबेथ ने कहा, क्या तुम मेरे साथ घोड़े पर सवार हो? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं उतर जाती हूँ। नहीं नहीं, एलिजबेथ बोली, मगर वो कोचवान कहाँ है? मारिया ने उसे बताया कि कोचवान अपनी मौत आप मर गया है। उसे अपने किए हुए बुरे कामों की सजा मिल चुकी है। अब हमें वापस घोड़ा गाड़ी के मुसाफिरों के पास चलना चाहिए। दोनों वापस घोड़ा गाड़ी के पास आ गईं। मुसाफिर घोड़ा गाड़ी के पास खड़े एलिजबेथ का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। एलिजबेथ ने जाते ही कहा, कोचवान फरार हो गया, उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस रास्ते से वाकिफ हूँ। मैं गाड़ी लेकर आपको लंदन पहुँचा दूंगी। आप बराए मेहरबानी गाड़ी में बैठ जाएं। अगरचे सर्दी बहुत शदीद थी, फिर भी मुसाफिर बेचैनी से गर्म मफलर लपेटे बाहर खड़े थे। एलिजबेथ के यकीन दिलाने पर वो गाड़ी में बैठ गए। एलिजबेथ ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और गाड़ी की ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने बागें हाथों में पकड़ ली। मारिया उसके पास बैठी थी। एलिजबेथ ने मारिया से कहा, मुझसे बागें नहीं खींची जाती।
घोड़े बड़े मुंहजोर हैं। मारिया ने कहा, तुम खामोशी से इसी तरह बैठी रहो और बागें मुझे पकड़ा दो। मारिया ने बागें अपने हाथ में लेकर घोड़ों की एक हल्की सी चाबुक मारी। घोड़े शायद मारिया के खौफ की वजह से सड़क पर भागने लगे। किंग्सबरी पहुंचते पहुंचते दिन चढ़ाया था, मगर धूप नहीं खुली थी। आसमान पर बादल थे और ज़मीन पर धुंध छा रही थी। किंग्सबरी पहुंचकर एलिज़ाबेथ ने गाड़ी सराय में दूसरे कोचवान के हवाले की और उसे बताया कि हेनरी नाम का कोचवान एक मफरूर कातिल था। उसे पकड़ने के लिए हमने छापा मारा तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। घोड़ा गाड़ी वालों ने एक दूसरा कोचवान दे दिया और वो एलिज़ाबेथ और दूसरे मुसाफिरों को लेकर लंदन शहर की तरफ रवाना हो गया। सुबह को रवाना होकर शाम के वक्त मुसाफिर गाड़ी लंदन पहुंच गई। एलिज़ाबेथ ने मारिया को साथ लिया और अपनी आंटी के मकान पर आ गई। उसकी आंटी का मकान शहर के एक ऐसे गुंजान इलाके में था जिसके एक जानिब शहर की पुरानी दीवार थी और दरिया बहता था। एलिज़ाबेथ की आंटी ने उसे गले लगा लिया, दूसरे लोगों की खैरियत पूछी और फिर कहा, एलिज़ाबेथ अब तुम मेरे यहाँ ही रहोगी। बेशक किसी मदरसे में पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो जहाँ चाहोगी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। एलिज़ाबेथ ने शर्माते हुए कहा, आंटी मैं अभी शादी नहीं करूंगी। एलिज़ाबेथ अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने कमरे में दाखिल होकर पीछे देखा। उसका ख्याल था कि मारिया ज़रूर उसके साथ होगी। उसने आहिस्ता से कहा, मारिया तुम मेरे साथ हो ना? मारिया ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ। एलिज़ाबेथ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसीलिए दरवाज़ा खुला रखा था। मारिया कहने लगी, वैसे मैं बंद दरवाजे से भी गुजर सकती हूँ। एलिज़ाबेथ ने हैरत से ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, क्या सचमुच? अचानक उसकी आंटी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में बिस्तर की नई चादरें थी। उसने ताज्जुब से एलिज़ाबेथ की तरफ देखा और कहा, एलिज़ाबेथ ये तुम बातें किससे कर रही थी? एलिज़ाबेथ पहले तो घबरा गई। आंटी दरअसल मैं लंदन थिएटर में ड्रामे में काम करने का इरादा रखती हूँ, बस एक मकालमा याद कर रही थी। ओह फिर तो मेरे खावंद का छोटा भाईजान तुम्हारी बड़ी मदद करेगा, वो थिएटर में अदाकारी करता है। अच्छा आंटी ये तो बड़ी अच्छी बात है। एलिज़ाबेथ ने यूं ही कह दिया। उसकी आंटी पलंग पर चादरें रखकर वापस चली गई। मारिया ने हंसकर कहा, अब तुम थिएटर में काम करोगी एलिज़ाबेथ? एलिज़ाबेथ हंसने लगी, तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं हर काम कर लूँगी। मारिया ने एलिज़ाबेथ के कमरे में डेरा जमा लिया और शहर में नाग और अंबर की तलाश शुरू कर दी। एलिज़ाबेथ घर के काम काज में लग जाती और मारिया शहर के गुंजान गली कूचों, दरिया के किनारों और शहर से बाहर जंगल में नाग और अंबर को तलाश करने निकल जाती। दोस्तों ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।